Lack of sleep cause you to gain weight? Is there a connection between sleep and weight gain or weight loss? These next two videos will help answer that question. Population studies have found short sleep duration has been associated with obesity in both children and adults. Observational studies can never prove cause and effect, though. Maybe the obesity is leading to sleep loss instead of the other way around. Obesity can cause arthritis, acid reflux, and apnea, all of which can interfere with sleep. The relationship between obesity and sleep apnea, where your breathing repeatedly stops and starts throughout the night, may be explained by increased tongue fat deposited inside the base of the tongue that may contribute to obstructing your airway when you sleep on your back. The reverse causation explanation of the link between obesity and inadequate sleep is bolstered by the finding that weight loss interventions can improve daytime sleepiness. Potential confounding factors also abound. For example, people with lower socioeconomic status often work less desirable hours, such as rotating or overnight shifts, or may live in noisier neighborhoods with poorer air quality, more crime. The link between inadequate sleep and obesity persists after controlling for these kinds of factors, but you can't control for everything. You can't know for sure if sleep deprivation leads to weight gain until you put it to the test. तो उन्होंने कहा कि ये देखा गया था कि लोग जो कम सोते हैं, जिनको पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं मिलती, वो उनको वेट इश्यूज़ रहते हैं, या उनको पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं मिलती, या उनकी क्वालिटी ऑफ जो स्लीप है, वो अच्छी क्वालिटी की स्लीप नहीं होती, यानी कि गहरी निद्रा नहीं आती, तो उनको वेट इश्यूज़ रहते हैं। तो उन्होंने कहा ये साइंस को मालूम था, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए हमने टेस्ट्स किए। Have people pull an all-nighter and they get hungrier and choose larger portions? Randomize people to shave even just a few hours of sleep off every night. They start eating an average of 677 calories more a day. उन्होंने पाया कि यदि हम लोगों को नींद कम कर दें उनकी, तो पाया कि वो लोग जो थे, वो ज़्यादा खाना खाने लगे। और कितना खाना? 677 कैलोरीज़ औसतन ज़्यादा खाने लगे, जितना वो पूरी नींद जब लेते थे, उससे ज़्यादा खाने लगे। अब आप सोचिए, अगर एक नॉर्मल जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, अगर फीमेल्स और मेल्स की देखें, तो 1500 से 2000 के बीच में एक औसतन कैलोरी रिक्वायरमेंट है, और अगर आप उसमें से 700 कैलोरी ज़्यादा खा रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट अपना फूड रिक्वायरमेंट जो है वो डबल कर रहे हैं। तो फिर तो मोटापा आएगा ही आएगा। तो ये बहुत बड़ी मात्रा है कैलोरी की, जो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है अगर नींद ठीक से ना आए। ना सिर्फ कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, पर उनकी जो फूड चॉइसेस हैं, वो भी पुअर हो जाती हैं। अपना फूड पे जो सेल्फ कंट्रोल है, वो बहुत कम हो जाता है। Compared to the normal sleep control group. Although individual responses vary widely, anywhere from eating 813 calories less per day to as many as 1,437 calories more, on average, studies found sleep deprivation led people to overeat by about 180 to 560 calories a day. Restrict people's sleep, and they also start craving unhealthier choices, more snacks, more foods that are fatty and sugary. Stick people in a brain scanner after staying awake all night or after a few nights of 4-hour sleep, and their reward pathways light up brighter in response to high-calorie foods. तो उन्होंने कहा कि यदि आप लोगों को नींद की मात्रा कम कर दो, उसके बाद उनको फंक्शनल एमआरआई कराओ, एक स्पेशल तरह का एमआरआई कराओ, जहाँ पे आपको अलग-अलग जो एरियाज़ हैं ब्रेन के, वो लाइट बल्ब की तरह जल जाते हैं। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों की स्लीप कम हो, नींद कम हो, तो वो लोग जो खराब वाला खाना है, उसको देख के उनकी ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होती है, यानी कि उनकी ब्रेन जो है, उनमें खराब खाने की एडिक्शन बढ़ जाती है। ये हमने एक्चुअल फिज़िकली अपनी आँखों से ब्रेन स्कैन पे हमें ये बातें दिखाई देती है। यानी कि नींद का सीधा-सीधा संबंध जो है, हमारी लाइफ़स्टाइल चॉइसेस पे भी नींद का संबंध पड़ता है। हम अपनी बॉडी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसकी जजमेंट भी हम खो देते हैं। तो यदि किसी को सिगरेट की आदत हो,
एक एग्जांपल दे रही हूँ, या अल्कोहल की आदत हो, और ये अल्कोहल और सिगरेट जो है वो हमें नींद में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हमें ठीक से सोने नहीं देती। लेकिन क्योंकि हम ठीक से सोए नहीं हैं, तो फिर हम ये अल्कोहल और सिगरेट की जो आदत है, इसको छोड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी ब्रेन जो है अब और ज़्यादा एडिक्शन करेगी, क्योंकि कम स्लीप होने के कारण हमारे रिवॉर्ड सेंटर्स जो हैं वो अधिक एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये एक तरह की विशियस साइकिल है जिसको तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। अल्कोहल से एक प्रॉब्लम और है, कई लोग सोचते हैं कि नींद नहीं आ रही, आज स्ट्रेस बहुत था, एक ग्लास वाइन ले लेते हैं, नींद अच्छी आएगी, या एक छोटा पैग लगा लेते हैं, नींद अच्छी आएगी। ये सही है कि आपको शायद सोने में आसानी हो, क्योंकि आपकी ब्रेन जो है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होता है अल्कोहल, तो आपकी ब्रेन को सुला देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो अल्कोहल जो है, शराब, ये जाके एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, ये एक तरह का जहर है ब्रेन के लिए, और ये जहर जाके बनता है अपने पीक पे सुबह 2 या 3 बजे जाके ये जहर बनता है। तो जब 3 बजे ये जहर बनता है एल्डिहाइड, तो ये आपकी ब्रेन को जगा देता है। तो आप अल्कोहल लेके सो तो गए, लेकिन आपकी स्लीप का जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो बहुत कम होगी, और आप जल्दी अपनी नींद से निकल आएंगे। तो अपना भारी नुकसान हम करते हैं। Calorie foods. Sleep deprivation bumps the levels of the chief endocannabinoid in the body, the natural chemical we synthesize that binds to the same receptors as the active ingredient in marijuana. This may help explain the nighttime nibbling. On the calories outside of the equation, some तो कहते हैं कि जो लोग रात को अधिक जागते हैं या पूरी तरह से नींद नहीं लेते, उनके अंदर इस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, जो कि जो लोग भांग लेते हैं, कैनबिस लेते हैं, मैरिजुआना लेते हैं, उनकी ब्रेन में बनते हैं। तो फिर हमें क्या होता है, ये एडिक्शन हो जाती है कि रात को कि हमें भूख लगी है, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हंगर को ट्रिगर करते हैं। जो भी लोग मैरिजुआना लेते हैं, उनको पता है कि उन्हें भूख बहुत अधिक लगती है। इसीलिए नॉन एडिक्टिंग जो फॉर्म है मैरिजुआना का, जो एडिक्शन नहीं कॉज करता, उसको कीमोथेरेपी के साथ भी यूज किया जाता है अमेरिका में, ताकि पेशेंट्स को, कैंसर पेशेंट्स को भूख लगे। तो यदि हम नींद कम कर देंगे, तो हमें भी इस तरह के हार्मोन्स बनेंगे हमारी ब्रेन में, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे, जो हमें रात को मन करेगा कि सोने से पहले भूख लगी है, कुछ खा लें, कुछ खा लें, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए। short sleepers may take the extra time to exercise. Others will be so sleepy they exercise less. The extra wakefulness may raise calorie expenditure up to about 100 calories a day, but if sleep deprived individuals are overeating hundreds of calories, over time, sleep deprivation may end up putting the wide in wide awake. With insufficient sleep inadvertently leading to such higher calorie intake, it's no surprise that 4 out of 5 studies involving as few as 2 to 5 nights of sleep restriction found an increase in body weight. In other words, if you sleep less, you may gain more. Okay. तो अगर हम कम सोएंगे, तो रिसर्च ने पता लगाया हमारा वेट बढ़ जाएगा। But here's where it gets crazy. Even if you control calorie intake, you still lose more fat when you get more sleep. Overweight subjects who normally got between 6.5 to 8.5 hours of sleep a night were randomized to 2 weeks of either 8.5 hours of sleep a night or 5.5 hours of sleep on the same calorie controlled diet. Then the group switched and spent another 2 weeks in the opposite regimen. So they spent a month living in a lab so their diets and sleep could be totally controlled and monitored. And just looking at the scales, sleep duration didn't seem to matter. During both periods, they ate the same number of calories and lost the same amount of weight. But most of the weight lost while getting 8.5 hours was fat, whereas most of the weight lost when only getting 5.5 hours of sleep a night was lean body mass. Same diet, but with more sleep, they ended up losing more than twice as much body fat. So you snooze, you lose. तो उन्होंने एक स्टडी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी थी, कि उन्होंने 2 ग्रुप में पेशेंट्स को डिवाइड किया। एक ग्रुप को 5.5 घंटे की नींद दी गई, दूसरे ग्रुप को 8.5 घंटे की नींद दी गई। ये 14 दिन तक किया गया, और
फिर उन्होंने उसको सेम मात्रा उनको भोजन की दी गई दोनों ग्रुप्स को। फिर 14 दिन बाद उन्हीं लोगों को पलट दिया, यानी कि जो 5.5 घंटे की नींद ले रहे थे अब उनको 8.5 घंटे की नींद दी गई, और जो 8.5 घंटे की नींद ले रहे थे उनको 5.5 घंटे की नींद दी गई। तो क्या पाया उन्होंने? पाया कि जो लोग 8.5 घंटे की नींद ले रहे थे उन लोगों के अंदर जो वेट लॉस हुआ, दोनों ग्रुप्स की उन्होंने कैलोरीज कम कर दी थी पर इक्वल थी। तो जो लोग 8.5 घंटे की नींद ले रहे थे उनमें जो वेट लॉस हुआ वो अधिकांश वेट लॉस फैट का लॉस था, और जो लोग 5.5 घंटे की नींद लेते हुए जिन्होंने वेट लॉस किया उनका जो वेट लॉस था वो लीन मसल, यानी कि उन्होंने अपनी बॉडी की मसल्स को लूज किया। तो इसका मतलब नींद लेना कितना जरूरी है कि अगर हम पर्याप्त मात्रा में नींद लें, 7 से 8 घंटे के बीच की नींद लें, तो हमारा, और ठीक से भोजन करें, कैलोरीज बहुत अधिक ना खाएं, एक्सरसाइज करें, तो जो वेट लॉस हमारा होगा वो हमारा फैट का लॉस होगा, ना कि लीन मसल का लॉस होगा। Fat. तो ये बहुत ही जरूरी बात थी।